السلام علیکم۔ سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ احمد سانجار اور سلطان ملک شاہ کے درمیان اب صرف ایک دروازے کی رکاوٹ باقی رہ جاتی ہے، اور اس ویڈیو کی شروعات احمد سانجار سپاہی سے ہوتی ہے۔ سانجار بڑا پریشان کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اچانک کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، اور دوستو یہ دروازہ سلطان ملک شاہ نہیں بلکہ حاجی نظام الملک کھولتے ہیں۔ سانجار کہتا ہے، میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، وہ مجھ سے کیوں نہیں ملتے تھے؟ پھر نظام الملک سارا ماجرا سانجار کو بتاتے ہیں۔ جب حاجی اپنی پگڑی لے کر جھونپڑی سے باہر آ جاتے ہیں اور غم سے نڈھال ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران سلطان ملک شاہ حاجی کے پاس آتے ہیں اور ان کی پگڑی پکڑ کر کہتے ہیں، سالوں پہلے بھی ہم اسی حالت میں تھے، اور اس دوران جو میں نے فیصلہ کیا تھا اپنی تمام تر تکالیف کے باوجود کیا تھا۔ میں نے یہ سب ریاست کے لیے کیا تھا، میں نے اپنے بچے کی طرح اپنی ریاست کا خیال رکھا ہے۔ پھر سلطان ملک شاہ حاجی کی پگڑی ٹھیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں، آج بھی مجھے دوبارہ وہی کرنا پڑا ہے۔ حاجی یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں، جس دن راز فاش ہوگا وہ وقت ایک دن ضرور آئے گا، لیکن اس دن ہم دونوں کو یقین ہوگا کہ کوئی بھی طاقت اس کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتی۔ حاجی نظام الملک مسکراتے ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ وزیر کی مہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں، طاقت اور تجربہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے، اور جو چیز آپ کے لیے مناسب ہے وہ اس امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ نظام الملک پھر سلطان کے ہاتھوں سے وزیر اعظم کی مہر لیتے ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، اس کی حفاظت ایسے ہی کریں جیسے آپ نے میرے بیٹے کی حفاظت کی ہے۔ حاجی نظام الملک کے آنسو بہتے جاتے ہیں اور وہ اپنی دی ہوئی امانت مہر واپس رکھ لیتے ہیں۔ یہ ساری ہی کہانی حاجی نظام الملک سپاہی سانجار کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنے دل کو غمگین مت کرو، تمہارے بابا نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ سانجار کہتا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ مجھے ان تمام سالوں کے بعد ملنا چاہتے تھے، اس بات نے ہی میرے دل کے زخم کو بھر دیا ہے۔ میرے بابا نے صحیح کیا ہے، جب تک ریاست محفوظ نہیں ہو جاتی اس وقت تک میرا ان کے ساتھ ملنا ناممکن ہے، اور اب فرض نبھانے کا وقت آ گیا ہے، مجھ پر اپنے حقوق حلال کر دیں۔ سانجار یہ کہہ کر یہاں سے چل پڑتا ہے، لیکن خواجہ نظام الملک سانجار کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں، رک جاؤ۔ حاجی نظام الملک پھر سانجار کی تلواریں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حاجی نظام الملک سانجار کی ضبط کی ہوئی تلواریں اسے واپس پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تلوار قلم کے بغیر بیکار ہیں، علم کے میدان میں باطنیوں پر غالب آنے کے لیے ہمیں سائنس میں مہارت رکھنے والوں کی بھی ضرورت پڑے گی، میں اس کے لیے یوسف ہمدانی کے پاس بھی جاؤں گا۔ سانجار خوشی خوشی اپنی تلواریں واپس حاجی نظام الملک سے لیتا ہے، جبکہ حاجی کہتے ہیں، باطنیوں نے حفاظتی تدابیر بڑھا دی ہیں اور اس بار ان میں سرایت کرنا اور بھی مشکل ہوگا۔ یہ مت بھولنا سانجار، ہمیں ایک بہت بڑا خطرہ درپیش ہے، اور جہاں تم پر گھات لگا کر حملہ ہوا تھا اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے جو سپاہی میں نے بھیجے تھے وہ بھی واپس نہیں آ سکے ہیں، اور ہمارے پاس باطنیوں کے بارے میں کچھ معلومات بھی موجود ہیں، اور تمہارا یہ معلومات جاننا بہت ضروری ہے تاکہ تم آسانی سے ان میں سرایت کر سکو۔ سانجار کہتا ہے، کہاں ہے وہ معلومات؟ حاجی کہتے ہیں، شلمزار۔ لیکن اس دوران سانجار کو امیر التبر کا وحشی پن یاد آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی سانجار اپنا سر ہلاتا ہے۔ لیکن حاجی نظام الملک کہتے ہیں، میں تمہاری پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ یہ علاقہ امیر التبر کا ہے، لہٰذا تمہارا اس کی نظر میں آئے بغیر حرکت کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہی سب سے مناسب طریقہ ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں باطنی سب سے زیادہ ہیں۔ سانجار کہتا ہے، اس کام کے مقابلے میں امیر التبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حاجی کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی علامت نہیں ہونی چاہیے جس سے تمہاری شناخت ہو سکے، اور اپنے گھوڑے کو قبیلے میں ہی چھوڑ دو، اور تم ایک نئے گھوڑے کے ساتھ وہاں پر جاؤ گے، اور جب تم وہاں پہنچو گے تو ان کی توجہ تمہاری طرف راغب ہوگی، تو وہ تمہیں اپنے درمیان لے جائیں گے۔ سانجار کہتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ حاجی مسکراتے ہیں اور خفیہ معلومات اور اپنا ایک خفیہ منصوبہ سانجار کو بتاتے ہیں، جبکہ پھر دوسری جانب کمانڈر یورگوس دکھایا جاتا ہے، جسے ایک سپاہی کہتا ہے، الیکسیوس کے قاتل کہاں رہتے ہیں؟ ہمیں یہ پتا چل گیا
गया है योरगोस, अब हम इन सब को तलवार के वार से खत्म कर सकते हैं। योरगोस कहता है हमें ये यकीनी बनाना होगा कि हमले के वक्त कातिल वही कबीले में ही मौजूद हो, इसीलिए हम पहले कबीले में दाखिल होंगे और कातिल को तलाश करेंगे और फिर इसके बाद मैं इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे मार डालूंगा। मैं इसके जिस्म के खून का एक एक कतरा निकलते हुए देखूंगा। इतने में दोस्तों कुछ सल्जूक फौजी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनके साथ वो लोहार भी मौजूद होता है जिसने योरगोस को किनक कबीले के मुतल्लिक बताया था। सल्जूक फौजी कहता है लोहार, क्या यही वो आदमी है जिस पर तुम्हें शक है? लोहार कहता है हाँ बिल्कुल। इसी दौरान योरगोस फौरन अपनी तीर कमान उठाता है और सामने एक निशाना लेता है, लेकिन वो अपने सिपाही से कहता है पहले हम जो साया हमारा पीछा कर रहा है इससे निपटेंगे। योरगोस फौरन फिर अपने तीर का रुख मोड़कर सल्जूक सिपाही के सीने में दे मारता है और इसी दौरान 4 से 5 सल्जूक फौजी फौरन नमूदार होते हैं और योरगोस के साथ मुकाबले में आते हैं, लेकिन योरगोस और इसका सिपाही सारे सिपाहियों को एक एक करके शहीद कर देते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब किनक कबीला दिखाया जाता है जहां संजार अपने सिपाहियों से कहता है मुमकिन है कि ये हमारा आज तक का सबसे मुश्किल फरीजा हो जवानों। ये एक बहुत बड़ा फर्ज है जिसमें अपने भाइयों का खून बहने से पहले इसे रोकना होगा। हम रियासत को गिरने नहीं देंगे, ये हम पर मुनहसर है। ये लोग बिल्कुल भी दूसरे दुश्मनों की तरह नहीं हैं। हमारी तलवारों की तरह हमारे दिमाग भी हमारे काम में तेज होने चाहिए। असलान ताश और मैं इनमें सरायत करेंगे और तुम लोग बाहर से हमारी मदद करोगे। बोलाबान, तुम एहतियाती तदाबीर के लिए कबीले में ही ठहरोगे। फिर बोस्कोच सिपाही कहता है हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस दौरान कोरकोत अता सरदार भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कोरकोत अता जवानों के दरमियान में आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं जब तुम जैसे बहादुर जवान आग के गिर्द अपनी तलवारें लेकर इस तरह से जमा हो तो इसका मतलब है कि वो जंग पर जा रहे हैं। असलान ताश कहता है आप सही कह रहे हैं कोरकोत अता, लेकिन ये जंग मैदाने जंग में कई फौजियों से लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल होगी। आई दो सिपाही फिर कहता है हमारा दुश्मन हमसे लड़ने के लिए शैतानी चालों को इस्तेमाल करता है। फिर संजार कहता है हमारा सामना ऐसे किले से है जो या तो हम फतह कर लेंगे या हम सबको तबाह कर देंगे। कोरकोत अता फिर कहते हैं हैबर किला भी इसी तरह से एक मजबूत किला था, लेकिन इसको फतह करने वाला ईमान इस किले से भी ज्यादा मजबूत था। असलान ताश कहता है वो कैसे कोरकोत अता? कोरकोत सरदार फिर कहते हैं हैबर किला मक्का, मदीना और दमिश्क के रास्ते में आता था। मुसलमान फौज ने इसका मुहासरा कर लिया था। दोस्तों इस दौरान सारे सिपाही बड़े गौर से कोरकोत अता को सुनते जाते हैं और कोरकोत अता कहते हैं इस मुहासरे में 2000 मुसलमान सिपाही शहीद हो गए, लेकिन वो किला फिर भी नहीं गिरा। हमारे पैगंबर आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया कल मैं ये झंडा किसी ऐसे शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह और इसके रसूल मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह ये फतह इसके हाथों से फरमाएगा। फिर उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने पास बुलाया और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में इस्लाम का झंडा थमा दिया और जुल्फ़िकार तलवार इनकी कमर के साथ अपने हाथों से बांधी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इनसे फरमाया जब तक अल्लाह पाक आपको फतह अता ना कर दे इस वक्त तक आप लड़ते रहें और पीछे मत हटना। हजरत अली करमल्लाहु वजहो अपने घोड़े दलदल पर सवार होकर हैबर की तरफ अकेले चल देते हैं और किले में मौजूद काफर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस तरह से तन्हा कौन आ रहा है। काफर कहते हैं तुमने जुर्रत कैसे की कि तुम हैबर के सामने इस तरह से अकेले आए हो? लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजहो ने फरमाया मैं बहादुरों का शाह, जंगों में ताकतवर अबू तालिब का बेटा अली हूँ। मैं तुमसे ये किला लेने आया हूँ। मेरी कमर के साथ जुल्फ़िकार तलवार बंदी है और इस तलवार ने तमाम काफरों के घुटने टेक दिए हैं और हमें हिम्मत सिर्फ ईमान से मिलती है। ये सुनकर काफर हजरत अली करमल्लाहु वजहो की जुर्रत से खौफजदा हो गए और फिर इनमें से सबसे ताकतवर मरहब
आगे बढ़ा और हजरत अली करम अल्लाह वजहों ने कुफार के सबसे ताकतवर आदमी मरहब को अपनी तलवार जुल्फ़िकार से शिकस्त दी। जब इस्लाम की फौज ने ये देखा तो इनके हौसले बुलंद हो गए। इनकी हिम्मत और बहादुरी ने सबके दिलों को भड़का दिया था। फिर इस्लाम की फौज ने हमला किया और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हजरत अली करमल्लाहु वजहों ने अकेले हैबर का वो दरवाजा उखाड़ फेंका जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी नहीं उखाड़ा जा सकता। दोस्तों, ये वाकया सुनकर सारे सिपाहियों के सीने जोश, वलवले और ईमान की रोशनी से जगमगा उठते हैं, जबकि कोरकोत अता कहते हैं और इस तरह अल्लाह की मदद से हैबर किला फतह कर लिया गया। मुख्तसर ये कि बहादुरों के पास दुश्मनों के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार इनका ईमान है, और जब आपके पास ये हथियार हो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। और हक की राह में लड़ने वाला हर एक सिपाही अली है और हर तलवार जुल्फ़िकार है। जब तक आपका ईमान आपके साथ है, आप पीछे मत हटना। संजार समेत सारे सिपाही फतह तक पीछे ना हटने का अहद करते हैं और कोरकोत सरदार का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं। कोशक खातून इस दौरान अपनी सरदारनी से कहती हैं, तर्कन खातून मुझे हमेशा से डरा देती हैं, हम इस कबीले से जल्द अज जल्द निकल सकते हैं क्या? एल्चिन खातून कहती हैं, खौफ को अपने दिल में दाखिल होने ना दें, ये इनकी सबसे बड़ी ताकत की वजह है। हम हाली धमकियों के आगे अपनी कमजोरियां जाहिर करके गलतियां नहीं करेंगे। हम बहुत जल्द मेरे भाई को बचाकर इस महल से निकलने का रास्ता तलाश करेंगे। कोशक खातून कहती हैं, क्या हम अपनी जानों को खोए बगैर ये सब कर सकती हैं? एल्चिन खातून कहती हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम ये करेंगे, बल्कि हम इनके साथ लड़ेंगे और अपनी जानें देंगे। हम इस महल में सिर्फ एक ही वजह से हैं और वो ये है कि हम अपने भाई किलिज अरसलान को बचाएंगे, और जब तक मुझे मालूम ना हो जाए कि वो कहाँ हैं, मैं तर्कन खातून को अपनी हौसला शिकनी नहीं करने दूंगी। फिर दोस्तों, दूसरी जानब कोवल किला दिखाया जाता है, जहाँ सुल्तान मलक शाह हाजब कमच के हमरा एक ताजर के भेस में बाजार में आते हैं और कमच कहता है, सुल्तान मुअज्जम, ये है कोवल किला। हमने खामोशी से एहतियाती तदाबीर एहतियार की हैं, लेकिन आपको इस तरह से अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। सुल्तान कहते हैं, जो किला कल तक हमारा था आज ये लगड़ बकों के हाथ में है। हम अब इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए इन्हें अच्छी तरह जानने की जरूरत है। इस दौरान कमांडर आंद्रेयास भी कोवल किले के बाजार में पहुंच जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, अगर सल्जूक और बाज़ंतीनियों के दरमियान कोई तजारती माहिदा ना होता तो यहाँ एक भी मुसलमान ताजर मेरे हाथों जिंदा ना बचता। इन सब के पास इजाजत नामे हैं। सिपाही कहता है, जी जनाब। आंद्रेयास फिर कहता है, चलो फिर इनके पास चलकर देखते हैं। इस दौरान सुल्तान मलक शाह एक ताजर के पास आते हैं और इसकी गंदम को हथेली में चेक कर कर इससे कहते हैं, गंदम काफी मोटी और ताजा है, ये आप कहाँ से लाते हैं? ताजर कहता है, ये यहाँ की ही पैदावार है, हम बाहर से कुछ नहीं खरीदते हैं। यहाँ की जरखेज जमीन हमें हर साल बहुत कुछ देती है। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, शुक्रिया, और फिर सुल्तान मलक शाह गंदम फेंक कर आगे चल देते हैं। दोस्तों, इस दौरान हाजब कमच कहता है, मेरे सुल्तान, आपने गंदम के बारे में क्यों पूछा है? सुल्तान कहते हैं, चूँकि इन्हें हर साल इसी तरह वाफर मिकदार में गंदम हासिल होती है, तो जरूर कोई ऐसा जरिया है जो कोवेल आता है जिसे हम नहीं जानते हैं। हमें वो जरिया तलाश करके उसे बंद करना होगा। इसके अलावा इतनी वाफर गंदम के साथ वो बाहर के खाने के बगैर 1 साल तक रह सकते हैं। हमें इसके मुताबिक ही अपना मंसूबा बनाना होगा। हाजब कमच मुस्कुराता है, लेकिन इतने में सुल्तान मलक शाह की नजर कमांडर आंद्रेयास पर पड़ती है। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, शहंशाह रोमानोस का भतीजा बरसों से ये मलाजगर्द में मेरे बाबा के हाथों अपने चचा के कैद होने का गुस्सा अपने दिल में पाल रहा है, लेकिन अगर ये भी हमारी मुखालफत का इसरार करता है तो इसके चचा की किस्मत दोहराई जाएगी। दोस्तों, सुल्तान मलक शाह फिर आगे चल देते हैं और कहते हैं, चलो लोहार के पास चलते हैं।
हैं और पता करते हैं कि वो ये हथियार किस लोहे से तैयार करता है। लेकिन दोस्तों इस दौरान कमांडर आंद्रेयास मलक शाह को आवाज लगाता है कि रुको। सुल्तान मलक शाह मुड़कर पीछे देखते हैं, जबकि आंद्रेयास कहता है मैंने तुम्हें पहली मर्तबा यहाँ देखा है। इस दौरान दोस्तों मुसलमान ताजरों के भेष में सल्जूक फौजी चौकंदा हो जाते हैं और वो अपनी अपनी तलवारें तैयार कर लेते हैं ताकि मुमकिना खराब सूरत हाल से फौरन निपटा जा सके। जबकि इधर कमांडर आंद्रेयास सुल्तान मलक शाह के पास आता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब शलमजार दिखाया जाता है, जहां सिपाही सांजार और असलान ताश एक ताजर के भेष में दाखिल होते हैं और फिर साथ में निजामुल मुल्क का मंसूबा भी बताया जाता है। जब उन्होंने सांजार से कहा था तुम शलमजार में ताजर बनकर जाओगे और ये तासुर दोगे कि तुम रियासत के खिलाफ हो, वहाँ हर जगह बातनियों के आदमी मौजूद हैं और तुम इनकी तवज्जो हासिल करोगे और मैं बाजार में जरूरी इकदामात करूंगा। सांजार फिर असलान ताश को इशारा करता है और फिर दोनों सिपाही मजीद दुश्मनों के दरमियान में चले जाते हैं। जबकि फिर वापस कोवेल किला दिखाया जाता है, जहां सुल्तान मलक शाह आंद्रेयास से बातचीत करने में मसरूफ होते हैं। आंद्रेयास इस दौरान कहता है तुम बाजार में हर दुकान के पास जा रहे हो, लेकिन तुम खरीदार नहीं लगते हो। क्या तुम ताजर हो या तफ्तीश करने आए हो? सुल्तान मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं एक एक करके सबके पास जा रहा हूँ और अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है। तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि मैं एक ताजर ही हूँ, क्योंकि हम मशरक के ताजर कीमतें देखने और सौदेबाजी के बगैर कुछ नहीं खरीदते हैं। आंद्रेयास कहता है तुम अपना इजाजत नामा दिखाओ। फिर दोस्तों सुल्तान मलक शाह हाजब कमज को इशारा करते हैं और हाजब कमज इजाजत नामे के कागजात अपनी जेब से निकालता है और कमांडर आंद्रेयास को देता है। जबकि कमांडर आंद्रेयास मकतूब का गलाफ नीचे फेंक देता है और मकतूब पढ़ता है और कहता है ताजर अब्दुल सलाम, मोहर और स्याही तो मुझे ताज़ा लगती है, जैसे कि ये कुछ दिन पहले ही लिखा गया हो, लेकिन ये इजाजत नामा सालाना तौर पर दिया जाता है। लेकिन तुमने बाजार में मुआयने के लिए खसूसी तौर पर ये जाली कागजात बनवाए हैं। आंद्रेयास फौरन कागजात नीचे फेंक देता है, जबकि बाजार में मौजूद मुसलमान ताजरों के भेष में सल्जूक फौजी फौरन चौकंदा हो जाते हैं और आंद्रेयास के साथ मौजूद बाजंतीनी फौजी भी अपनी तलवारों पर हाथ रख देते हैं। सुल्तान मलक शाह फिर हाजब कमज को इशारा करते हैं और हाजब कमज फौरन इजाजत नामा उठाकर सुल्तान को देते हैं। सुल्तान मलक शाह फिर मुतमईन होकर दुश्मन पर अपनी असलियत वाज़ेह किए बगैर इससे कहते हैं ये कागज पायदार है कमांडर, कागज तो अच्छा है, लेकिन देखो ये जरा सी रगड़ से फट गया है, कागज नरम हो गया है, क्योंकि हम धूप से झुलसा देने वाले रस्तों से यहाँ पर आए हैं। बहरहाल स्याही इसी गर्मी की वजह से नरम हो गई है और इसीलिए ये ताज़ा दिखती है। सुल्तान मलक शाह मुस्कुराते हुए इजाजत नामा कमज को थमा देते हैं, जबकि कमांडर आंद्रेयास मुस्कुराता है और सुल्तान मलक शाह को थपकी देकर इनसे कहता है अब्दुल सलाम, आप एक अक्लमंद आदमी हैं। अगर आपकी कोई और वजह होती तो मैं मुतमईन ना होता। जहाँ भी तुम जाओ सिर्फ कोवेल किले की अशिया नहीं बल्कि कमांडर आंद्रेयास को भी जहन में रख कर जाना, खास तौर पर इस्फहान। दोस्तों ये नसीहत करके कमांडर आंद्रेयास यहाँ से चल देता है, लेकिन सुल्तान मलक शाह इसे रोकते हैं और कहते हैं कमांडर, मेरे नाम के मायने हैं सलाम देने वाला अल्लाह का बंदा। आप किस कदर ज़हीन आदमी हैं। मैं ये बात इस्फहान तक अपने साथ लेकर जाऊंगा और अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं आपके लिए इस्फहान से सलाम लाऊंगा। कमांडर आंद्रेयास ये सुनकर बड़ा हैरान होता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते हुए वो अपने सिपाहियों से कुछ बातचीत करता है। जबकि इधर हाजब कमज अपने सुल्तान की जहानत पर फख्र करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।